चैलेंजेस हम लोग डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जो हमारे पेरेंट्स जब ग्रो कर रहे थे तब चैलेंजेस बहुत डिफरेंट थे। तब के चैलेंजेस में और अब के चैलेंजेस में देयर वाज अ बिग डिफरेंस। अब बहुत डिफरेंस आ गया है। लाइक टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज चेंज्ड। The technology which our parents have seen and the technology which we are seeing is completely different. So when time is changing, the challenges are also very different. So for today's class, the topic is good touch and bad touch. Let me know कितने बच्चों ने सुना है good touch और bad touch क्या है? Good touch and bad touch. Okay, I will pick you one of you randomly and will tell me. Okay, I will ask you. I will ask from you. Stand up. What is good touch and bad touch? Touch means like when apart the other person is touching in which you are feeling comfortable. Is good touch. What about bad touch? A bad touch like a private Repeat parts which are private from us and Can you then please speak again? What is good touch and bad touch? good touch means are parts of our body which if a other person touches we are comfortable with it, and bad touch means the parts which are private to us and if the other person touches we feel uncomfortable. Okay, thank you. Can I have the mic, please? Okay. So now, what she has told us, good touch is a touch which makes us very comfortable. So, who all in our family member can give us good touch? In our family members, one by one. My mom can give me a good touch. With English. My whole family. Your dad, okay. Anybody else? Yes. Now my grandmother नहीं आप my grandmother can give me a hug which is a good touch. Okay. Anybody else want to say who can give you a good touch? Yes, my your father. Okay, ma'am will give you next time. My father, my mother, Hriday, brother, sister. So overall, जो हमें good touch from a family पता चले, that is basically our parents. Now, what if the good touch comes from the external person? Which type of people can give us a good touch whom we are not familiar? जिनसे हम familiar नहीं हैं, who are those people that they can touch us? Doctors. Very good. Doctors, when you are feeling under the weather, जब आपकी तबीयत खराब होती है and you go to doctor without a touch, how a doctor can judge you what sort of problem you are facing? आप stomach ache भी बताओगे तो the doctor is supposed to touch your stomach. आप फीवर बताओगे तो the doctor is supposed to touch your forehead. ये सभी nurse. Okay. Now when I will give you chance, then you can speak to me. Okay? If you have any query, you can simply raise your hand. आपको कोई query हो, आप लोग hand raise कर लीजिएगा. I will reply to your query. So doctor can touch us. If I talk about in school, teachers, teacher or a medical teacher. But what can be a sort of example when a teacher can touch you? She can touch softly your cheeks. Apart from that, any hard touch given by any other person, especially a male member or a female member, then that comes under a category of a bad touch if the intentions are not good. What do you mean by intention? अगर किसी की नीयत अच्छी ना हो, अगर कोई आपको उस केस में टच करता है, फॉर एग्जाम्पल टीचर है, आपके गुड मार्क्स आए, टीचर ने बोला शाबाश, तो शी कैन गिव यू वेरी गुड. The way I patted his cheek, is it a good touch or a bad touch? Good touch.
right? But what if somebody comes and catches throat? This can be life-taking touch. This can be life-taking touch. Means it can take your life, it can cost you your life. So teacher जब भी किसी को टच करेगी तो not with the purpose of ऐसा नहीं कि टीचर ने छू दिया है तो घर जाके बोलो मामा मामा टीचर ने बैड टच किया. No. You have to see कि वो place कैसी है. It is a public place or a private place. Ideally आप सबको बाहर जब बाहर के लोगों से मिलते हो you should not go to the isolate place. बाहर जहाँ सुनसान जगह आपके स्कूल में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना. अगर जाना है कोई काम है तो आप टीचर की परमिशन से या किसी सीनियर के साथ ही जाओगे. नो बेबी don't talk in the class, okay? So that way you cannot go to the isolate place. Isolate place क्या होती है? सुनसान जगह, खाली जगह, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना. Like forest, मतलब आपको कहीं पे भी जाना है जहाँ Forest or your schools, bus, ground, anywhere like that. कहीं पे भी जाना है या तो आपको अपने ग्रुप्स में रहना चाहिए. किस में रहना चाहिए? मम्मी पापा का कहीं पे भी आउटिंग पे जाते हैं. अभी समर ब्रेक है. यू पीपल आर गोइंग फॉर योर समर आउटिंग्स. Wherever you go, hold your parents' fingers. At least if you are growing, अगर आप ग्रो कर रहे हो और आपको फिंगर पकड़ना शेम लगता है तो be after them. आप अपने आसपास चेक करो कि हमारे आसपास कोई स्ट्रेंजर तो नहीं है, कोई स्ट्रेंजर आपको फॉलो तो नहीं कर रहा है. इन केस आपको कोई स्ट्रेंजर ऐसा लगता है कि वो आपको फॉलो कर रहा है, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. डोंट डायरेक्टली गिव अ कॉल टू पुलिस. नो, अनटिल एंड अनलेस हमें कोई उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग चीज ना पता हो, अपने अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है या किसी एल्डर को. दे विल डिसाइड. हो सकता है कोई आपको फॉलो ना कर रहा हो, उसको वाकई कहीं जाना हो, तो आपका काम सिर्फ कितना है, दैट यू हैव टू टेल इट टू योर पेरेंट्स. Okay, what makes you feel safe, respected and happy? I will let you speak, okay? Okay, can you tell me, आपको कब लगता है कि आपके रिस्पेक्ट हुई है या आपकी बात रखी गई है या आप सेफ हो? In our class we cannot write it, but at least I can give you chance to speak out. One line everybody will speak, okay? I'm starting from Hriday. Hriday, tell me in one line that makes you safe and happy. Pass on the mic one by one, hurry up. Zoom in करके. When I am surrounded with my family people. Speak out. When I am surrounded with my family people. Give the mic to Vaibhav. Yes, Vaibhav. When do you feel safe or happy or respected? Anything. With my family. When I am there with my family. Family. Pass on the mic. When I share my feelings to my mother. Very good. Pass on the mic, beta. Come on. When do you feel happy or safe or respected? My mother. When I am with my mother. In my home. At my home. Okay. Very good. In my father. In my father, no, with my dad. With my With dad. my father. When my parents know where I am. When my parents know where I am. Very good. With friends. With friends. He will not speak. Pass on the mic to Maya. Yes, Maya. With my friends. With my. Speak out With again. my friends. Yes, baby. With my mom and dad. Okay. You want to speak out? No? When I am happy.
With my friends. When you are with your friends, pass on the mic. Parents. When I am with my parents, okay. When I'm with my school teachers and classmates. Okay, very nice. At home. At home. When I'm with the people I trust. Okay. When I'm with my parents. Then I'm with my parents. Okay. So everybody is very much familiar when you are in a groups. आप सबके आंसर्स को अगर हमें एक नटशेल में बताना हो, एक छोटा सा समराइज करना हो, तो व्हाट वी फाइंड आउट, वी आर सेफ ओनली व्हेन वी आर इन ग्रुप्स. सो हमारा गुड टच और बैड टच जो है, जब हम ग्रुप में होते हैं तो वी आर ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड. बट यस, मेक श्योर that group has one senior person also. Otherwise, friends of your age may not be wise every time. Like you are a child, अगर आपकी क्लास के कुछ 5-6 बच्चे मैं ले लूँ, तो वो सभी बच्चे comes under the category of kids. For example, I put you one example. Your school has organized inter-school competition. But your school is asking you to go alone. What will be your feelings? आपके स्कूल ने इंटर स्कूल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है. वो कंपटीशन आपको आपके स्कूल में नहीं है, किसी और स्कूल में है. बट स्कूल की तरफ से गाइडलाइन है कि आप अकेले जाओ. What will be your feelings? You will feel insecure. आपको कंपटीशन तो सेकेंडरी है. आई विल गिव यू चांस बेटा. अब जब मैं कुछ पूछूंगी तो मैं आपको बोल दूंगा हैंड रेस करने के लिए, ठीक है? You will feel insecure. But what if there are many students from your school and the teacher is going with you in a school bus? Which feeling is better? Feeling is same. Where you are more safe? With teacher and school kids, or alone you are going to another school? So what we find out कि we are always safe when there is one senior person in our group. Now we will talk about know your body boundaries. We all have got a body and to protect that body is completely our right. आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन कौन करेगा? मम्मा क्यों करेगी? अभी आपके साथ मम्मा आई है. You will take care of body yourself. जब हम घर से निकलते हैं तो अपनी बॉडी खुद लेके चलते हैं, मम्मा लेके आती है. We come ourselves. Now recognize the touch type. Like I did like this. So this is a good touch or bad touch? But when somebody is coming and touching your private parts, that is absolutely a bad touch. Touching of a private part is always a bad touch. We should not let anyone touch our private parts. Private parts can only be touched by if required by our parents or by the doctors to check whether your condition or your health is good or not. Now respond confidently. For example, आप क्लास में लोन बैठे हो और एकदम से कोई आउटसाइडर आ गया और आपको बोले खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, अंकल बहुत हार्डली आपको टच कर रहे हैं. जब मैम टच कर रही है तो मैम कैसे टच कर रही है? सॉफ्टली. बट दैट आउटसाइडर पर्सन इज हैविंग अ प्रेशर इन हिज हैंड्स. आपको लग रहा है कि मैं जानती नहीं हूँ और ये मुझे टच कर रहा है. हाउ विल यू फील? सो यू शुड इमीडिएटली रेज अ वॉइस. आप कभी अकेले होते हो तो आपको अपनी वॉइस रेज करनी है. हेल्प मी, वहां से भाग जाओ, वहां से इमीडिएटली भाग जाओ. कभी आप अकेले होते हो, ऑल ऑफ अ सडन आप जा रहे हो तो किसी के साथ जा रहे हो, बट फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में. ये सवीर, व्हाट डू यू वांट टू से? नो बेटा देखो, अब मैम बाहर जाएगी तो पूरे रोड पे मैम के लिए तो सब स्ट्रेंजर ही है. हम छुप जाएंगे तो अपनी जगह पे कैसे पहुंचेंगे?
हाँ वेरी गुड. हाँ, हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी है, स्पेशली जब हमें लग रहा हो कि कोई हमें फॉलो करना है. नाउ प्रैक्टिस गुड मैनर्स. अगर आप भी किसी को ग्रीट करते हो तो ओनली शेक हैंड्स. हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू. डू नॉट टच एनीवन. नाउ मैम इज टीचिंग इन अ क्लास. एम आई कमिंग एंड टचिंग यू अननेसेसरी. मैम आके किसी के हैंड प्रेस कर रही है, किसी के लेग्स, किसी के आर्म, शोल्डर्स. Am I touching anything? No. So whenever you present yourself to any person, ensure that you are not touching. Your hand should be completely like this, or your hand should be completely at your back. So this is called good manners. This is called good manners. And the bad manner is you are touching cheeks, you are touching hair, you are getting the hairs missed. You are touching feet and also all these things comes in the bad manners. तो जब हम किसी से बात करते हैं तो we ensure that we are giving the good hand gestures. Like ma'am is moving her hands, so I'm showing the gestures. So the good manner is like that. We should not, when we are speaking, then we should not touch anyone. Right? Anybody has to say anything now can ask me. Avir, I'll give you chance. Anybody else? Yes. No, you can use it like this and you can speak out. When I'm going to the school, then I can go in school bus. There is my friends. Okay, so you go to school with your group. Yes, Avir? Your eyes are paining? You want to wash your eyes? Go. Anybody else? Go. Anybody else have to speak anything? Okay. Now, good manners. Being safe and being polite go hand in hand. When you protect yourself, जब आप अपने आप को protect करते हो and treat others with respect. आप अपनी सुरक्षा भी खुद कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपनी सेफ्टी भी कर रहे हो. यू बिल्ड अ लाइफ फुल ऑफ ट्रस्ट, फ्रेंडशिप एंड कॉन्फिडेंस. क्या जनरेट होता है इससे? स्पीक आउट ट्रस्ट, स्पीक आउट ट्रस्ट, फ्रेंडशिप एंड कॉन्फिडेंस. और कभी बैड टच होगा तो ये तीनों चीजें आपके सामने जनरेट नहीं होंगी. In my class, you people are feeling positive or negative? Positive. So this is called a good manner. This is called a good manner. We are giving intellectual session. क्या कर रहे हैं हम लोग? Intellectual session. Now, for example, suddenly I started beating. You people will not listen to me. You people will not listen to me. Until and unless I have a purpose. जब तक कि मेरे पास कोई purpose ना हो. For example, sometimes we score very less marks. कई बार हमारे टीचर्स को expectation ज़्यादा होती है तो they can give us little bit slap in a gentle manner, not harshly. So then that's not called bad touch. अभी वर्कशॉप के बाद, सेशन के बाद many people will say हमारी मैम ने बताया था, मैम किसी और ने टच कर ले तो नहीं वो बैड टच था. यूज योर माइंड वाइजली. बैड टच हमेशा वही होगा या तो आप बहुत सुनसान में होंगे या कोई पर्सन आपको जरूर से फॉलो कर रहा होगा या आपके ऊपर कोई अच्छे से वॉच आउट रख रहा है. तो यू हैव टू यूज योर विट्स. यू हैव टू यूज योर विट्स. विट्स मतलब अपना दिमाग अच्छे से यूज करना और सही जगह पे यूज करना है. Now, every person has an invisible circle. Yes, beta. Yes. Like a protective bubble. Your body is your own body. You have the right to decide who can close and who can touch you. आपकी बॉडी है, आपकी राइट है. आप अपने कजन्स एंड फैमिली से मिलते हो. So first time, do you hug them or not? You hug them. But to your school friends, when you go after long, do you hug your friends?
बहुत क्लोज होगी तो ही हक करोगे। सेक्शन दूसरे से कोई बच्चा उठ के आ जाएगा तो क्या आप उसको हक करोगे? नो। तो योर बॉडी इट्स यू हु यू डिसाइड। ये बॉडी किसकी है? तो ये डिसाइड कौन करेगा? नाउ योर बॉडी बिलोंग्स टू यू एंड ओनली यू। नोबडी हैज अ राइट, किसी को भी राइट नहीं है कि वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। सिर्फ आपको ही आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करनी है। अब आप लोग बाहर आए हो, किस किस के मम्मी पापा साथ बैठे? किसी के भी नहीं बैठे, तो अपनी बॉडी का ख्याल कौन रखेगा? हमें खुद ही रखना है। हमें ये सिर्फ ध्यान में we have to take care of our own. Your feelings and your privacy decide how you feel. For example, there is a eve called Friendship Day. On Friendship Day, what you do? You exchange bracelet, and when somebody is exchanging the bracelet, so they must hold the hand. For example, Mahir, stand up. For example, it's Friendship Day and I am Mahir's friend. So what I will do? I will tie a band on his hand. So now I'm holding his hand. Is it a good touch or bad? But when somebody forcefully, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे ही बांधूंगा। आप मैं तो तुझे जानते ही नहीं हूँ। तो but and that case, the touch is not good. But हम फ्रेंड्स एक दूसरे को जानते हैं तो I can hold his hand. But I don't know him. And वो मुझे कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बांधूंगा, मैं तो दोस्त बनाऊंगा। तो from there you have to run away. वहां से भाग जाना है। तो again, अब आपको जबरदस्ती करे बट आप उसे नहीं बनवाना चाहते, you will run away. But अगर आपने नहीं बोला तो वो तो जबरदस्ती आपको बांध देगा। बट आप बनवाने के बाद हैप्पी फील? इन दैट केस आगे चल के क्या करना है? मान लो किसी ने जबरदस्ती चाय कर दिया, आप नहीं जानते, यू शुड गो एंड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और यू शुड इन्फॉर्म योर टीचर्स. Your photos, your chats and online identity belong to you. Now, हम good, yes बेटा, yes. गुड टच एंड बैड टच के केस में अभी सब कुछ आप लोगों में से बहुत से बच्चे अपना सोशल प्रोफाइल भी बना चुके होंगे. ऑनेस्टली गिव मी आंसर, किसके पास सोशल प्रोफाइल है? सोशल प्रोफाइल मीन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और आजकल बहुत सारी एप्स हैं. नाउ यू पीपल आर पुटिंग योर फोटोज, यू पीपल आर uploading your photos. Yes. ठीक. तो जब हम सोशल अकाउंट पर होते हैं, बट इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में पेरेंट्स को नहीं पता है कि उनके सोशल अकाउंट्स बने हुए हैं. आप उनके आई एम टेलिंग कुछ, आई एम नॉट टेलिंग एवरीवन बेटा. यस. सो आप में से कुछ स्टूडेंट्स के प्रोफाइल सोशली हैं बट आपके पेरेंट्स को नहीं पता है. आप किसी से इंटरैक्ट भी करते हैं तो इंश्योर दैट कि आपका नोन टू पर्सन ही हो. कौन हो? आप इंटरनेट पे चाहो तो बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं. सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो एंड यू विल से ओए मेरे तो सोशल मीडिया पे 1500 फ्रेंड्स हैं. अगले दिन आपके फ्रेंड को जो चढ़ेगा घर जाएगा वो 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेज देगा. फिर अगले दिन वो बोलेगा मेरे पास तो 1600 फ्रेंड्स हैं. तो आर दोज फ्रेंड्स रियल फ्रेंड्स? नो, दोज फ्रेंड्स आर नॉट आवर रियल फ्रेंड्स, दैट आर कंप्लीटली फेक. वो आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आपको किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन से ऑनलाइन बात नहीं करनी. वी डोंट हैव टू टॉक टू एनी स्ट्रेंजर. और आप किसी से बात करते भी हो तो इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. एंड सेकेंडली, हमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी, कोई भी ट्रांजैक्शन भी नहीं करनी. कोई आपको बोले मुझे ओटीपी दे दो, सो ओटीपी दे दो, तो हमें ओटीपीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक.
हमारे पेरेंट्स का फोन होता है, उसमें पेरेंट्स की डिटेल्स होती है, तो कोई बात नहीं, इट विल डिसअपीयर। सो जब हम पेरेंट्स के अकाउंट से फोन से अपना कोई भी चीज को लिंक करते हैं तो डोंट डू एनीथिंग योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स का फोन भी हैक हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय हैक? नो, हैक डजंट मीन खराब। आपके फोन का कंट्रोल किसी और के पास कंप्लीटली चला जा सकता है, तो आपको हमेशा वही फोन यूज करना है जो आपके पेरेंट्स आपको सुपरविजन में दे, एंड ऑलवेज हैव टाइम टू योर स्क्रीन। ये सभी नो, बट यू डोंट हैव टू टेल टू एनीवन, ओके अवीर? Okay, now we have already talked about good touch is a warm handshake. Did this ma'am tell you or not? Doctor examination, we have already discussed कि जब हमें डॉक्टर चेक करेगा तो definitely he will touch and see us. A comforting hug. Did I give you example of comfort hug? When we celebrate friendship day and we go to our cousin's house after very long, or if we go to them occasionally, then we initially hug them, okay? And a pat on the back, like teachers give you pat like this. Very good. So this is good or bad? Next, what is a bad touch? Hitting, slapping or hurting, touching private part, secret touches. Now, forced touching. Secret touches is a very important part. Secret touching is a somebody touches you, ठीक है, and tells you कि आपको ये किसी को नहीं बताना. That is so very 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 bad. ठीक है, टच तो किया ही किया, साथ में क्या बोल दिया? सीक्रेट रखना है, बताना नहीं है। और कुछ बच्चे सीक्रेट वर्ड को इतना सिंसियरली ले लेते हैं, अपने फ्रेंड का बताया हुआ भी कोई पार्ट, कोई भी स्टोरी पार्ट और एनीथिंग अपनी मम्मी को भी नहीं बताते। नहीं मम्मा, ये मेरी फ्रेंड का सीक्रेट है और उसने मुझे मना किया है बताने को। Always, always tell everything to your parents. हमें हर चीज घर जाके अपने पेरेंट्स को और टीचर से डरना नहीं है। I do agree कि कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हमें उनके पास जाने में डर लगता है। सी, वो टीचर्स की पर्सनालिटी होती है, कोई टीचर स्ट्रिक्ट होती है और कोई टीचर हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, बट आप उनके पास जाओगे रिस्पेक्टफुली तो वो आपको सुनने से कभी भी मना नहीं करेंगे। मान लो एक टीचर ने मना कर भी दिया, अभी आई विल गिव यू व्हेन द किड्स हैव टू स्पीक, ओके? मान लो टीचर ने मना कर भी दिया, यू हैव ऑप्शंस टू गो टू अदर टीचर्स ऑल्सो। आपकी क्लास टीचर ने मना कर दिया तो यू पीपल हैव ऑप्शन टू गो टू योर सब्जेक्ट टीचर्स। सब्जेक्ट टीचर भी नहीं है तो यू कैन गो टू इंचार्ज, यू कैन गो टू कोऑर्डिनेटर। चलो मान लो स्कूल में किसी ने सुना ही नहीं, देन वी कैन गो टू आवर पेरेंट्स। एंड एनी हाउ स्कूल में बता भी दो तो सबसे पहले हमें वो चीज, आई गिव यू चांस। यू आर फीलिंग कोल्ड, so in that case we have to tell and inform everything to our parents. मामा आज मेरी क्लास में बच्चे ने बैड टच किया। So सबसे पहली बात तो बैड टच करने देना ही नहीं है किसी को। आपने फाइट भी नहीं करनी है। बॉयज बॉयज में फाइट हो जाती है क्लास में, टीचर नहीं है तो चलो उससे पंगे लेने चलते हैं। अगर आपको मजाक करना भी है तो ऐसा मजाक करो कि जिसमें आप किसी को टच ना करो। पंगे वही अच्छे होते हैं जिसमें कभी किसी बच्चे का कोई नुकसान ना उसका नुकसान हो और ना ही। पहली बात तो जो भी चीज करनी है विदाउट टच, किसी भी चीज में टच इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। नाउ
अनकंफर्टेबल और कंफ्यूजिंग टच, जब भी आप बैड टच के थ्रू जाओगे तो फीलिंग नर्वस और एंग्शियस नोइंग विदाउट, यू विल फील समथिंग वेरी अजीब। लाइक अभी मैंने क्लास में एग्जाम्पल करवाते कराते जितने भी बच्चों को टच किया, दे फॉरगेट, शायद वो भूल भी होंगे मैम ने हमें टच किया, बट कुछ ऑल ऑफ अ सडन वाले टच होंगे तो वो आपको एक बार के लिए डिस्कम्फर्ट देगा। क्या देगा? आपको वो चीज अच्छी ही नहीं लगेगी। नेक्स्ट, स्टमक फीलिंग टाइट और क्विजी, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगी। यू विल नॉट फील हैप्पी इन साइट, यू वॉन्ट टू रन अवे और हाइड। कोई बार बार पकड़ के आपको मार रहा है तो आप वहां से इमीडिएटली भाग जाना चाहोगे। फीलिंग एम्बैरेस्ड और अशेम्ड, यू विल नॉट फील वेरी गुड, यू विल फील समथिंग कि पता नहीं क्या हो गया है। बट व्हेन गुड टचेस आर देयर यू विल ऑलवेज फील हैप्पी, यू विल ऑलवेज बी चेयरफुल, हंसी खुशी नाचते हुए जाओगे। अम्मी आज मेरे टेस्ट में 10 on 10 आया, मैम ने मुझे बैट किया, ठीक है, बट ऑल ऑफ अ सडन किसी स्ट्रेंजर ने आपको होल्ड किया आपका हैंड तो आप डर जाओगे। मे बी यू स्टार्ट शिवरिंग, मे बी यू स्टार्ट स्वेटिंग, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज बिल्ट स्ट्रॉन्ग, हर कोई स्ट्रॉन्गली बिल्ट नहीं होता। ट्रस्ट योर बॉडी सिग्नल, इट इज नेवर रॉन्ग। डू यू नो, हमारी जो बॉडी होती है वो हमें हर चीज के बारे में बहुत पहले ही बता देती है। ओनली आप इतने बिजी नहीं होने चाहिए कि आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर सको। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को फीवर है बट वो बच्चा फीवर अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहा है। फीवर 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, लाइट फीवर है, बच्चे ने मेडिसिन वगैरह नहीं ली, 4th डे जो वो फीवर है वो किसी और डिजीज में टर्न हो जाता है। उसको स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, देन वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो उसके पेरेंट्स को पता चला। बट आपको हल्का हल्का फीवर आ रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। तो यू शुड इमीडिएटली टेल योर पेरेंट्स, मामा मुझे फीवर हो रहा है। हो सकता है 1 डोज पे देने के बाद आपका फीवर ठीक हो जाता, बट आपने बताया नहीं तो आपको फीवर से थ्रोट इन्फेक्शन या स्टमक इन्फेक्शन हो गया। अब तो डॉक्टर पे जाना ही पड़ेगा और डॉक्टर दवाइयों का कोर्स देगा, तब भी ठीक नहीं होगा तो डॉक्टर वुड रिकमेंड यू टेस्ट, ठीक है। आप जंक फूड खाए जा रहे हो एवरीडे बेसिस पे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन खा ले, फिर आपको स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया। तो जब स्टमक में पेन आ रहा है बट बॉडी इज टेलिंग यू दैट योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। फिर 1 दिन 2 दिन है, आपने 2 दिन बीत गए, जंक फूड से ब्रेक ले लिया, फिर खाना, फिर धीरे धीरे वो आपके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड इज ऑलवेज हैविंग एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ फैट्स एंड देयर ऑयल इज ऑल्सो वेरी बैड। सो उसके बाद अब आपने अपनी बॉडी की नहीं सुनी, आपकी बॉडी ने आपको अलार्म दिया था स्टमक एक देके, पर आपने अपनी बॉडी को नहीं सुना, आप फिर भी नहीं माने। पहली बात तो आपके पेरेंट्स ही आपको अलर्ट कर रहे होते हैं, रोज रोज जंक फूड मत खाओ, पर आप लोग वही ढीठ के ढीठ। क्या मम्मी रोज ही बोलने लग जाते हो, एक ही काम है, आज ही तो खा रही हूँ, पता चला वो आज बस थोड़ी देर के लिए था, कल फिर वो नए आज में आ गया। तो अभी आपने पहले पेरेंट्स की नहीं सुनी, फिर आपने अपनी बॉडी का स्टमक एक नहीं सुना, तो देन व्हाट हैपेंड, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे आपके फैटी लीवर आ गया। अब तो डॉक्टर ने बोला खाया तो बस हो गया काम। सो लाइकवाइज फॉर एवरीथिंग योर बॉडी इज यस गो। So for everything the body is always giving you some or the other signals. Yes, Avi? Yes, very good. They can always guide us also, beta. Now, when you have specific activity like you go for the swimming part, swimming part, make sure that your private parts are covered with the swimsuit. Swimming is the most common summer activity.
it is scorching hot, बाहर बहुत ज़्यादा hot है, and everybody wants to relax themselves. So what they are doing? They are directly going and having that dip in a pool. So when they are having a dip in a pool, what is happening? That they are going to swimming pool. And when we are going to swimming pool, then definitely we are going to wear the swimsuit. And when we are wearing the swimsuit, to protect our body, we should ensure that we are covering our private parts very nicely. No one asks you to touch their private parts. Wherever you go to airport, you go to seaport, you go to metro, you go to train, you go by train and all, you go to any outside place, nobody will ask you to touch your private part and nobody can touch your private parts. Though you go to police station or anywhere, nobody can touch your private parts. No photographing or showing private part pictures. It is completely unethical to click the photographs of your private part or to send it or somebody is sending you. It is completely unethical. It is completely unethical means completely behavior से opposite approach है. Completely very bad. So during summers you are wearing swimsuit. Ensure that you are wearing completely covered. There are swimming sets which are completely decent, which don't reveal your private body parts. And whenever you go to any external place, nobody asks you to touch your private part or nobody asks you to touch someone's private part. Wherever you go, you should never use your hands for anything. कोई आपको bill भी देता है. For example, sir, can I have any piece of paper? For example, if somebody is giving you like this, any bill or paper, so you should touch, you should receive it like, not ऐसे हाथ पकड़ के नहीं देना. Right, आप किसी से receive कर रहे हो या किसी को दे रहे हो, तो there should be a proper distance. There should be a proper distance. Now, always, yes, you want to speak something. Always trust your feelings. Sir, always trust your feelings. Our bodies gives us signals. I am already telling you and I am already emphasizing that our body signals for almost everything. Feelings help us to understand what is safe or what is not. Like right now you are sitting in a good institute. I believe that everybody is feeling safe and secure. But all of a sudden, there comes a situation where we ask you, go to a big place where it is isolated, no fan and no electricity. And I ask you to go and sit there, alone. You will feel insecure. You will not like. तो वहाँ ज़बरदस्ती नहीं बैठना है. वहाँ ज़बरदस्ती तो you should respect your feelings. You should take care of your feelings also. आपको अंदर से आवाज नहीं आ रही है, but you should not go and sit there. ज़बरदस्ती नहीं बैठना है. नहीं ऐसा लग रहा उठ जाओ. But स्कूल में ऐसा नहीं करना है. पता चले कंप्यूटर लैब में बैठे बोर हो रहे, नहीं हमारी वहाँ वाली मैम ने कहा था अच्छा नहीं लग रहा तो खड़े होके भाग जाना. Take it wisely. I am only talking about secure and insecure. ये learning part है, स्कूल तो attend करना ही है, and tuition and all institute also compulsory to attend. Now, when we have safe feelings class, we feel warm, calm and comfortable. We feel happy. We feel ease. We feel loved and cared, and we want to stay in the situation. So seeing everybody's faces, I can realize that we are having safe feelings. Now if I have to elaborate the unsafe feelings, yes class, no talking, बातें नहीं करनी, okay? Now if I talk about unsafe feeling, our stomach feels tight, we feel sick, we feel scared, हमें डर लगता है. क्या लगता है?
We get embarrassed. We want to run away and we feel like something is wrong. So, right now we all are feeling safe. And the feelings which are not safe have been already discussed to you. Right, class? Yes. Yes or no? Now, what if somebody is trying to touch you and you are all alone and nobody is there? Step 1, say no. What you will say? No. Speak out, no. No. Step number 2, you will move away. आप उस पर्सन के क्लोज ना जाके उसको धक्का देके वहां से भाग जाओ. Immediately run away. वहां ज्यादा देर नहीं रहना बिकॉज इट इज नॉट सेफ फॉर यू. नेक्स्ट, टेल ए ट्रस्टेड एडल्ट. वहां पे जिस भी पर्सन को आप जाते हो इमीडिएटली जाके सबसे पहले उसके पास जाना और उसे इन्फॉर्म करना. यस बेटा. नो बेबी, सिट जेंटली. फोल्डर आर्म्स. ऑल ऑफ यू फोल्डर आर्म्स क्लास. यस अवीर. अभी वी आर अबाउट टू ओवर द क्लास. आफ्टर क्लास यू कैन मूव. ओके. नेक्स्ट, कीप टेलिंग. आपने अपने जो आसपास जहाँ पे सिनेरियो हुआ है वहां पे जो बड़े हैं उनको बताओ. इन केस वहां पे कोई नहीं, समहाउ आप भाग कर रेस्क्यू होकर आ गए हो, घर आते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ. सो पेरेंट्स को एवरीथिंग यू हैव टू टेल. पेरेंट्स को सब कुछ बताना है. Who all are trusted adults in our life? Our parents, our guardians, our teachers, our counselors, our grandparents, our relatives and community helper. Which community helper is the trustworthy? Yes, doctor also. Now, what is the difference between secret versus surprises? Surprises always make you feel. Weber, what are you doing? Surprises will always make you feel happy. Surprising is temporary. It is get done on eventual basis. हर दिन आपको surprises नहीं मिलते. It comes to you on some special occasions. Example, planning a birthday party. For example, आपकी फैमिली में किसी क्लोज पर्सन का बर्थडे आ रहा है and you want to plan that party. So you are feeling surprised. हर दिन आप बर्थडे पार्टी सोना प्लान कर रहे हो. Are you planning a birthday party on daily basis? No. So you are planning a birthday party maybe once in a year. So that feeling is surprising. नेक्स्ट इज बैड सीक्रेट. कोई गलत चीज हुई और आपको उस पर्सन ने बैडली बोला है, अगर तूने प्रॉमिस नहीं रखा तो मैं तेरी पोल खोल दूंगा. आधे से ज्यादा बच्चे इस बात से डरते हैं. बिल्कुल नहीं डरना, चाहे आपकी बात कितनी भी गलत हो. यस. फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी किसी फ्रेंड के बारे में कुछ बोला, अब आपको डरा रहा है, मैं तेरे बारे में सारी बात बता दूंगा, तेरी मम्मी को बता दूंगा, तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है. तब भी बताना अपने पेरेंट्स को. सो अगर आप कोई जबरदस्ती किसी का सीक्रेट रख रहे हो एंड दैट इज अबाउट रिलेटेड टू एनी बैड टच, तो दैट विल ऑलवेज मेक यू फील स्केयर्ड. आपका उस वजह से पढ़ाई पे ध्यान ही हट जाएगा. जब आप कोई चीज गिल्ट वाली अपने अंदर रखोगे और बताओगे नहीं, तो सबसे पहला लॉस किस पे आएगा? आपकी स्टडी पे. और आप नहीं बताओगे तो आपके पेरेंट्स आपको पकड़ लेंगे, आपके टीचर्स पकड़ लेंगे. क्या बात है, तुम 100 में से 100 लाती थी, तुम्हारी परफॉर्मेंस एकदम 100 में से 30 पे कैसे आ गई? आपने बताया नहीं. अब आपका पढ़ाई में सबसे ज्यादा लॉस हो गया. नाउ एवरीबडी विल बी आफ्टर यू. क्या हो गया, इतने गंदे नंबर कैसे आया एंड ऑल दैट. और यही चीज अगर आपने टाइमली बता दी होती अपने पेरेंट्स को, तो आपके पेरेंट्स ने टाइमली एक्शन ले लिया होता. और आप डेली उसकी वजह से ना रात को सो पा रहे हो, ना खाना खा रहे हो ढंग से. मम्मी 2 चपाती दे रही है और आप 1 ही चपाती खा रहे हो. मम्मी मिल्क दे रही है तो आप आधा पी रहे हो, आधा छोड़ रहे हो.
तो लाइकवाइज आपके बिहेवियर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स बहुत आपको अच्छे से समझते हो तो उन्हें सबसे पहले पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो आपको सबसे पहले पेरेंट्स को बता दोगे तो चीज़ें टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाती हैं। और आप बैड सीक्रेट रखोगे, नहीं बताओगे तो वो खत्म ही नहीं होगा जब तक कि आप खुद ना बता दो। अभी आई विल गिव यू चांस बेटा, बार बार मैं बोलने का मौका दूंगी तो बेटा सेशन रह जाएगा। सर शैल आई सेंड हिम? नेक्स्ट, नेवर मेंट टू बी शेयर समवन्स इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो आपको ऑलवेज शेयर करना है अगर आपसे कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता है तो। नाउ now we have etiquettes and manners. Good touch and bad touch session is clear to everyone. Yes or no? Yes. अपनी सेफ्टी अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है? Yes class, tell me. Come on, tell me. क्या सीखा इतनी देर आपने मैम का लेक्चर सुना बेटा? अगर कोई बैड टच करे तो भाग जाना। और पहले क्या बोलना है? नो। यू वांट टू स्पीक आउट बेटा? बेटा सी, वो लर्निंग पार्ट में अगर आप चीजों को मिक्स करोगे देन दैट इज वेरी बैड। हम गुड टच और बैड टच की बात कर रहे हैं, हमें टीचर ने टास्क दिया उसमें टच कहाँ से आ गया बेटा? अगर आप चीजों को क्रॉस मीनिंग में लेके जाओ तो वो किसी भी तरीके से क्रॉस चल जाती है। बट हमारा मैसेज ये नहीं है कि आप टीचर के अगेंस्ट जाओ। इट्स ओके। तो यू शुड टेक द थिंग्स इन अ गुड डायरेक्शन। समझ में आया? गुड टच और बैड टच की बात हो रही है बेटा। आप इतने ग्रोन अप तो आप इजीली समझ जाओगे ये गुड टच है या बैड टच। तो वी आर टॉकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। Yes, who else will tell me what we have learned through this session? Yes. That nobody can touch our private parts without any proper reason. Like doctors, It's they our don't. body, so it is our right, and we should not let anybody else to touch our body without our permission. Yes, who else would like to quote what we have learned through this session? Yes. Your body is just in your control, not others. Yes, our body is completely in our control. Come on, I want everybody to participate in this learning. I don't think so that I have taught in a very boring way. Yes, is there? If anyone is tracking you, tell our parents. Inform to your parents. Yes. Your brain is controls your body. So we should inform to our parents. Yes. No one can protect us. Except it's we who have to take care of it. Yes. Very good question. अगर कोई हमें फॉलो कर रहा है तो हमें कैसे पता चले? फॉर एग्जाम्पल, yes. देखो, अगर आप इंसिडेंट की बात करो तो इंसिडेंट आप फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो, आपने थोड़ी देर पहले देखा कि देयर इज अ पर्सन वेयरिंग अ रेड शर्ट, वो आपके आगे है, ठीक है? वो थोड़े टाइम आपके लिए रुक गया, देन आप आगे चल रहे हो, आपने एकदम से पीछे देखा, आपने देखा वो पीछे आ रहा है, ठीक है? हो सकता है उसकी कोई इंटेंशन ना हो। आपने राइट लिया, आपने लेफ्ट लिया, राइट लिया, आप चेक करो जहां आप राइट लेफ्ट ले रहे हो, क्या वो ठीक, क्या वो ठीक राइट एंड लेफ्ट वही वाले फॉलो कर रहा है? क्योंकि जरूरी नहीं ना आप राइट ले रहे हो तो वो भी राइट ले, आप लेफ्ट ले रहे हो तो वो भी, आप देखो जहां आप रुक रहे हो क्या वो भी रुक रहा है? तो यू अगर आपका घर बिल्कुल लेफ्ट पे ही है तो अगर आप घर जाना चाहते हो तो आप घर चल जाओ, बट अगर आप इतने स्ट्रांग हो कि उसको टारगेट करके उसको नसीहत देनी हो, लेसन देना हो, बुलाना हो भाई को डंडे लेके आजा पीटने,
तो यू कैन ट्राई योर एक्सपेरिमेंट, राइट लेफ्ट ले लो, 10 बार पता चल जाएगा। 10 बार आपको खुद ही नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो। मैम क्या पता कि हम उसी स्ट्रेंजर के कॉलेज में अंदर बढ़ जाए। हमें पता ही नहीं ना हमने कहाँ पढ़ना है। मैम अगर हमें उसको सेम डायरेक्शन में लाना पड़ेगा तो मतलब Sorry, एक शॉप है तो हम दोनों को सेम शॉप में जाना है। आप पहले देखो तो सही, हम अपने शॉप से सामान ले ले, वापस अपने घर को जाओगे, देन सी अगेन इज ही फॉलोइंग। तो आपको अनकंफर्टेबलनेस आ जाएगी जब आप देखोगे ना कि आपको कोई फॉलो कर रहा है। यू विल स्टार्ट फीलिंग सम एंजाइटी, कुछ नर्वसनेस, कुछ आपकी बॉडी आपको अलार्म करेगी। अब इन्फॉर्म कर दोगे तो आपके पेरेंट्स पूछेंगे तो क्या बात है तुम मेरी बेटी को फॉलो क्यों कर रहे हो, तो वो बता देगा नहीं मैं नहीं कर रहा। और अगर आप सेम पर्सन को 5 बजे फिर अपने घर के बाहर देख रहे हो, दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन, देन योर पेरेंट्स विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। किसे कहते हैं फॉलो? एनीबडी एल्स? माहिर, यू हैव एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क? किस किस को आज का सेशन अच्छा लगा? रेज योर हैंड। किसको लगा मीनिंगफुल था, अच्छा था, मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया? किसको लगा मैम ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं एक्सप्लेन किया? अच्छा लगा? yes, Now clap for yourself and for me also.